وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ علی نعمائہ الشاملہ وآلائہ الکاملہ والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا محمدا المصطفى وعلى آله المجتبى ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم۔ لائق مبارکباد ہے کھندولی کے اہل ایمان جنہوں نے حضرت حافظ و قاری حضرت حافظ و قاری معین رضا صاحب قبلہ کی سرپرستی میں اتنا خوبصورت مجمع اکٹھا کیا ہے آپ نے، وہ بھی بڑے پیر کے نام، سبحان اللہ۔ میں دیکھ رہا ہوں جو جن کی ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہے ہیں۔ آپ اگر مجھے سننے آئے ہیں تو صرف مجھے سنیے، اور اگر آپ سنانے آئے ہیں تو ہم سنتے ہیں، آپ آتے سنائیے۔ دائیں بائیں آگے پیچھے جو یہ باتیں چل رہی ہے، مسکراہٹ، آپس میں گفتگو بالکل بند کر دیجیے، اس لیے کہ یہ جو آج آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نا، کل تک یہ جو جگہ جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مسجد کے سامنے والی گلی یا مدینہ مسجد چوک کے نام سے آپ جانتے ہیں، یہی ہے نا، یہ راستہ ہے اور مسجد کے سامنے والی گلی ہے، بس اتنا ہی۔ لیکن جیسے ہی آپ نے حضرت حافظ و قاری معین رضا صاحب قبلہ کی سرپرستی میں اپنا تعاون پیش کر کے جشن غوث الورا کا اہتمام کیا ہے، تو یاد رکھیے گا کل یہ کھندولی کی ایک جگہ تھی، کھندولی کا ایک چوک تھا، مسجد کے سامنے والی جگہ تھی، لیکن جیسے ہی آپ نے جشن غوث الورا کا نام دیا، شامیانے لٹکائے، جلسے کا آپ نے اہتمام کیا ہے، تو یہ اب کھندولی کی جگہ آپ کی نظر میں ہے، کھندولی کی گلی آپ کی نظر میں ہے، میرے پیغمبر کی نظر میں یہ پوری جگہ جنت کی کیاریوں میں سے سبحان اللہ۔ جناب تو آپ یہاں جو آئے ہیں، جو کل سمجھتے تھے کہ یہ وہ جگہ ہے، اس حساب سے نہیں، کل کا معاملہ اور تھا، آج کا معاملہ اور ہے۔ ابھی آپ جشن غوث الورا میں آئے ہیں، صرف مجھے دیکھیے، علماء کو دیکھیے، موبائل کی بات گھر میں چھوڑ آئے ہیں، موبائل کو گھر ہی میں رہنے دیجیے، اس لیے کہ کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ چلو یہی انہی کی تقریر یوٹیوب میں سرچ کریں گے، مفتی انوار اللہ قادری کا بیان ہے، ہو سکتا ہے آپ کو بیان مل جائے، لیکن وہاں بھی آپ میرا بیان سن سکتے ہیں،
لیکن یہاں اور وہاں بڑا فرق ہے. وہاں سنیں گے صرف سنتے رہیں گے لیکن دیکھنے کا ثواب نہیں ملے گا. یہاں علماء کو دیکھیے بھی اور مجھے سنیے بھی. سنیں گے تو اس کا ثواب اور ملے گا اور علماء کی زیارت کریں گے تو اس کا ثواب اور ملے گا. ہے کہ نہیں؟ تو آپ لوگوں کو سبحان اللہ یاد ہے؟ ہاتھوں کو لہرا کے بول دے سبحان اللہ. نام پر بولیں گے سبحان اللہ. اور کے نام پر بول رہے سبحان اللہ. حضرات میں کہہ رہا تھا کہ جگہ جو ہے جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا تھا صحابہ جب تم جنت کی کیاری سے گزرو تو کچھ چل لیا کرو. صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ جنت کی کیاری؟ جنت تو موت کا مزہ چکھیں گے. اعمال کا جو دفتر ہے رجسٹر ہے وہ چیک کیا جائے گا. اگر پاس ہو جائیں گے تب جنت کا معاملہ ہے. میرے آقا آپ دنیا میں فرماتے ہیں کہ جنت کی کیاریوں سے گزرو تو چل لیا کرو. بات سمجھ میں نہیں آئی. پیغمبر نے فرمایا تھا صحابہ سنو جہاں اللہ اور اللہ والے کا ذکر ہو رہا ہو اس جگہ کو اگر گزر جاؤ گے اس جگہ کے پاس سے گویا کہ تم جنت کی کیاری میں سے گزر رہے ہو. اور اگر وہاں پہ اللہ والے کا نام لیا جاتا رہے کوئی بات پسند آ جائے دل مچل جائے نبی کا خیال آ جائے دل میں مدینے کا تصور سما جائے میرے صحابہ اس موقع پر اگر تم اپنی زبان کو حرکت دے کر کے سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ کہو گے تو یہی جنت کے باغوں سے چل لے. سبحان اللہ. آپ جنت کی کیاری میں بیٹھے ہیں. جو جنت کی کیاری میں بیٹھے ہیں اس کا ادب بھی کریں اور جلسہ آپ کا کیسے کامیاب ہوگا اس کو بھی مد نظر رکھیں. حضرات آپ جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے یہاں کوئی بھی نعت خواں کوئی بھی مقرر نعت خواں اپنی نعت پڑھنے سے پہلے مقرر اپنی تقریر شروع کرنے سے پہلے آپ کو جانتے ہیں آپ سے درود پڑھواتے ہیں نا. درود کا پاور پیغمبر فرماتے ہیں جو انسان مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. یہ 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور 10 درجوں کو بلند فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور کیوں نہ ہو حضرات درود کا پاور تو یہ ہے. حضرت امام علامہ ابو عبداللہ محمد بن سلیمان جزولی علیہ رحمہ سبحان اللہ تقریباً آج سے 600 سال کے بزرگ گزرے ہیں. سفر کرتے کرتے ایک ایسے علاقے میں پہنچتے ہیں جہاں کوئی مکان وغیرہ دور تک نظر نہیں آتا لیکن نماز کا وقت ہوا جاتا ہے. اپنے مریدین اپنے چاہنے والے سے فرماتے ہیں نماز کا وقت ہو رہا ہے پانی تلاش کیا جائے. مریدین آگے نکلتے ہیں پانی تلاشتے ہیں نظر نہیں آتا ہے. قریب میں ایک مکان نظر آتا ہے. وہاں جا کے دستک دیتے ایک چھوٹی بچی نظر آتی ہے. بولے کہ بچی یہاں سامنے کنواں تو ہے لیکن پانی نکالنے کے لیے ڈول اور رسی نہیں ہے. اللہ اکبر. تب تک حضرت محمد بن سلیمان جزولی علیہ رحمہ کا قافلہ پہنچ چکا تھا. چھوٹی بچی تھی پہچان جاتی ہے یہ تو وہی سلیمان جزولی ہے جن کا ذکر جن کی شہرت گھر گھر میں ہو رہا ہے جن کی شہرت ڈگر ڈگر میں ہے. اللہ اکبر. وہ بچی کہتی ہے اے لوگوں مجھے یہ تو بتاؤ سلیمان بن جزولی جیسے عالم تمہارے ساتھ ہیں اور تم کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول اور رسی تلاش رہے ہو. واللہ اکبر. آپ کے چاہنے والے نے کہا تھا ہاں بچی ہمیں ڈول اور رسی چاہیے تاکہ ہم اس کے سہارے سے پانی نکال سکیں. وہ بچی
आगे बढ़ती है, जो कि नाबालिग थी, अब भी हदूद बलग को नहीं पहुंची थी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया आगे बढ़ करके जुबान को हरकत देती है, कुछ पढ़ती है, पढ़ने के बाद कुएं के पास आकर के थूक देती है। तो जिस कुएं का पानी निकालने के लिए सुलेमान जज़ूली के चाहने वाले डोल और रस्सी तलाश रहे थे, अब उस कुएं का पानी अपने आप उबाल मारता है, ऊपर आने लगता है, ऊपर आ जाता है। बच्ची कहती है लीजिए वुजू कर लीजिए, अल्लाह अकबर। बच्ची फिर चली जाती है अपने मकान के अंदर। ये उलमा की जमात वुजू कर रहे हैं, हज़रत सुलेमान बिन जज़ूली अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज अदा कर रहे हैं। नमाज अदा करने के बाद हज़रत मोहम्मद बिन सुलेमान ने कहा कि जाओ उस बच्ची को बुला के लाओ। वो बच्ची बुलाई गई। बुलाने के बाद हज़रत मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली ने कहा, बेटा ये तो बताओ तुमने कौन सा मंत्र पढ़ा है, तुमने कुरान की कौन सी आयत पढ़ी है, तुमने कौन सा दुरूद पढ़ा है। बेटी जिसकी बरकत से पानी ऊपर आ गया है, वो कल की छोटी बच्ची, नाबालिग बच्ची कहती है हुजूर मैंने कोई मंत्र नहीं पढ़ा है, मैंने कुरान की कोई बड़ी सूरत नहीं पढ़ी है, कोई कुरान की सूरत नहीं पढ़ी है। तो आप फरमाते हैं बेटी ये तो बताओ तुमने पढ़ा क्या है। बच्ची कहती है मेरे आका मैंने अपने नबी पर दुरूद पढ़ के इस कुएं में फूंका है, दुरूद की बरकत से कुएं का पानी उबला। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, मुफ्ती अनवारुल हक साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ में आ रही है? सोचिए जरा, वो कल की बच्ची थी, छोटी बच्ची है, लेकिन आकर के आगे बढ़ती है, दुरूद पढ़ के कुएं में थूकती है तो पानी ऊपर आ जाता है। मैं आपको एक हमदोली वाले बताना चाहता हूँ, क्या आपके घर की बच्चियां भी ऐसी है? आपने अपनी बच्ची को ऐसी तालीम दी है कि नहीं? बच्ची को नबी के हदीस का दर्स दिया है कि नहीं? ये मत सोचना कि तुम्हारा बच्चा बड़ा होने लगे, बालिग हो जाए, ये दिमाग में आ जाए कि रिश्ता कहाँ किया जाए कि जहेज आ जाए, जहेज ज्यादा मिले। और बच्ची का बाप हो तो सिर्फ ये मत समझना कि अगर बालिग हो जाए रिश्ता करना है, दौलतमंद रिश्ता कहाँ मिलेगा। अरे पहले ये तो सोचो कि तुम्हारे यहाँ पढ़ने वाली, पलने वाली, परवान चढ़ने वाली बच्ची जिसका रिश्ता तलाश कर रहे हो, वो बच्ची कनीज़े फातिमा बनी है कि नहीं है। आज हमारी सोसाइटी का जायजा लिया जाए तो हाल ये है कि 40% या 50% रिश्ते टूट जाते हैं। 10 लाख 20 लाख 30 लाख रुपए खर्च किया जाता है, उसके बाद चंद दिनों के बाद, चंद हफ्ते के बाद, चंद महीने के बाद दिखा के तलाक हो गई। क्यों तलाक हो गई? इसलिए तलाक हो गई क्योंकि बाप ये चाहता है बच्चा बड़ा हो गया है, उसका रिश्ता वहां किया जाएगा जहां जहेज ज्यादा मिलेगा। और बाप के लड़की का बाप ये चाहता है लड़का दौलतमंद है कि नहीं है। मुस्लिम, नबी के चाहने वालों, तुम्हारा नुक्ता नजर ये नहीं होना चाहिए बच्चा लड़का दौलतमंद हो जाता हो। ये मत देखो कारोबार कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये मत देखो खूबसूरत है कि नहीं है, ये मत देखो जुल्फों को लंबा रखता है कि नहीं रखता है, ये मत देखो अच्छा लिबास पहनता है कि नहीं पहनता है, ये मत देखो। अगर बच्ची का रिश्ता देखने जाओ तो सबसे पहले ये देखो रिश्ते में आने वाला लड़का गुलामे गौस है कि नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक गुलामे गौस है कि नहीं है। और लड़की का बाप ये देखे कि लड़की हमारे यहाँ जहां जा रही है वो घर कैसा है। बेशक बेशक नबी वाले घर है कि नहीं है, गौस वाले घर है कि नहीं है। तो जब लड़की वाले ये देखेंगे कि लड़का दीनदार है और लड़के वाले ये देखेंगे कि लड़की खूबसूरत है कि नहीं,
उससे कोई मतलब नहीं, अमीर है या गरीब उससे कोई मतलब नहीं, कद कैसा उससे कोई मतलब नहीं, तालीम कैसी है उससे कोई मतलब नहीं। सिर्फ लड़के वालों की नजर इस पे रहे कि लड़की जो हमारे यहाँ आ रही है बहू बन करके, किसी की भाभी बन करके, वो आने वाली लड़की कहीं से फातिमा की नहीं, कहीं से राबिया की नहीं। जब हम और अपनी शादियों में ये देखेंगे कि लड़का अच्छा है, दीनदार है, लड़की भी दीनदार है, तब ये रिश्ते होंगे और तलाक नहीं होगी बल्कि खैर और बरकत का नुज़ूल। सुभान अल्लाह, बेशक हक है, बेशक। तो मैं कह रहा था, हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जौहरी ने फरमाया बच्ची को बुलाओ, आ गई, चूंकि नाबालिग थी। आप फरमाते बेटा तुझे मेरे नबी का वास्ता, तुमने क्या पढ़ा है ये तो बता दो। बच्ची कहती है मैंने नबी पर दुरूद पढ़ा है। बोले वो दुरूद तो बता दो। अल्लाह अकबर, खंदोली वालों, अगर आपको उस दुरूद का पता चल जाएगा तो आप और किसी को नहीं बताएंगे, सुबह शाम उसी का विर्द करेंगे। और जब आपने फरमाया बेटी ये तो बता दो, तो बच्ची कहती है हुजूर मैं ये नहीं बताऊंगा। अगर इस दुरूद को बता दिया, लोग नबी पर दुरूद पढ़ने के जो और अल्फाज हैं वो छोड़ देंगे, इस दुरूद को पढ़कर अपना मकसद निकाल लिया करेंगे। अल्लाह अकबर। हजरत सुलेमान जौहरी वहीं बैठे और जितने दुरूद के अल्फाज याद थे लिखते जा रहे हैं, बच्ची को दिखाते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, बच्ची को दिखाते जा रहे हैं। फरमाते बेटा अब तो देखो क्या वो दुरूद आ गया, अब देखो क्या दुरूद आ गया। कई हफ्तों के मेहनत के बाद जब उनकी किताब जिसको हम और आप फलाइलुल खैरात कहते हैं उसको तैयार किया, लास्ट में वो बच्ची का यहाँ हुजूर वो दुरूद शरीफ तो इस किताब में आ गया, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। मालूम है जिस किताब में वो दुरूद है, उलमा फरमाते हैं जिस घर में दलाइल खैरात हो, जिस घर में वो दुरूद वाली किताब हो, उस घर में कभी आग नहीं लग सकती, उस घर में कभी फितना फसाद नहीं हो सकता, बल्कि खैर व बरकत का नुज़ूल। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। दुरूद पढ़े ना इस अंदाज में पढ़े। मेरे पैगंबर से साहबा ने अर्ज किया था या रसूल अल्लाह आप पर दुरूद पढ़ते हैं क्या आप सुनते हैं? नबी ने फरमाया था अगर कोई सिर्फ जुबान हिला देता है, दिल से नहीं जुबान हिला देता है, पैगंबर फरमाते हैं उस दुरूद का पावर ये है कि फरिश्ते मेरी बारगाह में गुलदस्ते में सजा के पेश करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा और खंदोली वाले ने जुबान को हरकत दी, कोई बीच में पकड़ा, कोई लास्ट में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोड़ दिया। तो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया दिल से नहीं पड़ा, जुबान को हरकत दी। पैगंबर फरमाते हैं फरिश्ते गुलदस्ते में सजा कर मेरी बारगाह में पेश करते हैं। या रसूल अल्लाह अगर कोई जुबान को हिला दे तो इसका पावर ये है, अगर कोई आपका तसव्वुर दिल में बसा ले, मदीने का तसव्वुर दिल में बसा ले, आंखों में आंसू आ जाए, फिर आप पर दुरूद पढ़े तो उस आशिक के दुरूद का पावर क्या होगा? नबी फरमाते हैं वो फरिश्ते मेरी बारगाह में उस दुरूद को नहीं पहुंचाते। साहबा चूक गए, या रसूल अल्लाह ये क्या मामला है? जो दिल से ना पढ़ा जाए फरिश्ते सजा के पेश करते हैं, और जो दिल से पढ़ा जाए, आपकी मोहब्बत में मचल के पढ़ा जाए, आपके इश्क में पढ़ा जाए, मेरे आका वो फरिश्ते नहीं पहुंचाते। बोले नहीं पहुंचाते तो फिर आका होता क्या है? पैगंबर फरमाते सुनो, जब मेरा कोई आशिक दिल में मुझे बसा ले, मदीने का तसव्वुर कर ले और आंखों में आंसू आ जाए, इस अंदाज में दुरूद पढ़े तो ऐ मेरे सहाबा सुनो, उस दुरूद को फरिश्तों को पहुंचाने की जरूरत नहीं। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह होता क्या है? पैगंबर फरमाते हैं सुनो सुनो, मैं मदीने में रह करके उस दुरूद को सुन लेता हूँ, तभी तो इस पर जब आला हज़रत की नजर पड़ी, पुकार उठे दूरों नजदीक के सुनने वाले कान काने लाले बराबर फिरा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, जश्न गौस वाला, जश्न गौस वाला, गौस का दामन, गौस का दामन, आजा पिया का दामन, कुल औलिया का दामन। नारे
यहाँ जो नागखानी हो रही है ना, इसका पावर बहुत बड़ा है। इतना बड़ा पावर है कि आप इस्लामी तारीख को ना देखें, आप दहली की तारीख का मुताला करें। कहाँ की तारीख? दहली की तारीख का मुताला करें तो आपको मालूम होगा दहली में एक शायर गुजरा है जिसका नाम है दिल्लो राम कौसरी। क्या नाम है? दिल्लो राम कौसरी दहली का शायर है। जब तक जिंदा रहा महफिलों में जाता रहा, नाते नबी पढ़ता रहा, दिल में इस्लाम था, जुबान पर इस्लाम नहीं, अंदर इस्लाम था, बाहर इस्लाम नहीं। मालूम है कि जब वही दिल्लो राम कौसरी का आखिरी वक्त आता है, रूह नहीं निकल रही है, तो उनके घर वालों ने कहा, चूंकि गैर मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखते थे, ऐ दिल्लो राम अनहोनी पढ़ लो। आपको मालूम है जब वो लोग क्या बोलते हैं अनहोनी, मतलब जब रूह ना निकल रही हो तो वो लोग कहते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह कलता कलमा पढ़ लो, रूह निकल जाएगा। दिल्लो राम अनहोनी पढ़ लो, बोले कि तुम्हारे कहने से मैं नहीं पढ़ूंगा, एक काम करो बाहर जाओ, सभी लोग दरवाजे में ताला बंद कर दो। सुभान अल्लाह। दरवाजे में ताला बंद करो, ताला बंद कर दिए, ताला बंद करके सब बाहर। जब सब बाहर हो गए तो मालूम है तारीख बताती है कहीं और की तारीख नहीं, ये दारुल खिलाफा दहली की तारीख है कि थोड़ी देर के बाद दिल्लो राम कौसरी जहां सो रहा था, लेटा हुआ था, जानदारी के आलम में था, रूह नहीं निकल रही थी, कमरा रोशन हो गया, कमरा मुनव्वर हो गया। अल्लाह अकबर। तारीख बताती है, कहने वाले लिखने वाले लिखते हैं कि मेरे पैगंबर तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं दिल्लो राम जब तक जिंदगी रही तुम महफिलों में जाकर मेरी नाम पढ़ते हैं। दिल्लो राम जिस जुबान से तुमने मेरा नाम लिया है, मेरी रहमत तो गवारा नहीं कि उस जुबान को दोज़ख की आग जलाए। ऐ दिल्लो राम सिक्के दिल से पढ़ लो कलमा मेरा ला इलाहा इल्लल्लाह। दिल्लो राम कौसरी नबी का कलमा पढ़ता है, नबी चले जाते हैं, कमरा अंधेरा हो जाता है, सन्नाटा हो जाता है। थोड़ी देर के बाद उसके घर वाले, रिश्तेदार, पड़ोसी दरवाजे का ताला खोलते हैं। जब खोल के देखते हैं कि दिल्लो राम इंतकाल कर गया है, रूह निकल गई है, तैयारी चल रही है गैर मुस्लिम रस्म रवाज के मुताबिक, उसको सारी तैयारियां करने के बाद शमशान घाट की तरफ लेके जाते हैं। वहां पे लकड़ी रखी गई, उसके ऊपर उनको रखा गया, उसके ऊपर लकड़ी रखी गई, उसके बाद घी डाला गया। मैं आपको बताऊं, मैंने किताबों में पढ़ा है, आज जलाने वालों ने आग माचिस लगा करके आग जलाई है, लकड़ियां जल रही है, घी जल रहा है, कपड़े जल रहे हैं, सब कुछ जल रहा है, लेकिन दिल्लो राम कौसरी में जिस पैसे में कपड़ा लगा हुआ था वो कपड़ा जल नहीं रहा है। सब ताज्जुब कर गए, होता क्या है? तो आपको मालूम होना चाहिए। बताना चाहता हूँ दुनिया वालों, दिल्लो राम कौसरी नबी का कलमा इस दुनिया में पढ़ ले तो दुनिया की आग नहीं जला सकती। तुम नबी की नाम पढ़ोगे तुम्हें जहन्नम की आग नहीं जला। बेशक बेशक हक है, बेशक। जिनका ताल्लुक इस्लाम से नहीं था लेकिन नबी की नाम पढ़े, नबी ने इस्लाम से नवाजा। बेशक। और जब घर वाले जला रहे थे उनकी लाश नहीं जल रही थी, नबी की रहमत बता रही थी। दुनिया वालों ये तो देखो, जिंदगी भर इस्लाम इसके अंदर रहा, इजहार न कर सका, लेकिन देखो आज उसको दुनिया की आग नहीं जला रही है। तो ऐ खम्बोली वालों, तुम अपनी जुबान की हिफाजत करो, अपने दिल को रोशन कर लो, अपने नबी की नाते पढ़ो, अल्लाह की तस्बीह पढ़ो, नबी पर दुरूद पढ़ो, नाते नबी को अपना विर्द जुबान बना लो। तो याद रखना कि आज दुनिया तो दुनिया क्या है, तुम्हें जहन्नम की आग नहीं जला पाएगी। इसलिए कि अगर कोई मामला पेश भी आ जाए वहाँ हाल ये होगा कि जो जा रहा है कोई आग
आदमी नहीं, नबी का आशिक जा रहा है, गौस का आशिक जा रहा है। जब ये होगा दुनिया की आग जला सकती है ना जहन्नम की आग। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तैयार हैं नबी पर दुरूद पढ़ने के लिए? पढ़ें, नबी पर सिद्ध दिल से दुरूद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जश्न गौसुल वरा में आए हुए हैं, तो आप यहाँ बात यह होनी चाहिए कि हमारे गौस की शान क्या है, उनकी जिंदगी कैसे गुजरी है। आज कौम मुस्लिम का जायजा लें, तालीमी एतबार से आज हम लोग किसी भी एतबार से किसी लायक नहीं है। हाल यह है कि हमारी जिंदगी तालीमी एतबार से वहाँ गुजर रही है जिसके पीछे कोई नहीं है, सबके पीछे हम हैं। हालांकि गौस आज़म फरमाते हैं, दरस्तुल इल्मा हत्ता सिंतो खुदबा, ऐ लोगों मैं इल्म हासिल करता रहा यहाँ तक कि अल्लाह ने मुझे खुदबियत के मकाम को इनायत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक दर्जा दिया। आज क्या हो रहा है? आज हो क्या रहा है? घर में कार है, बगाड़ियां है, मोटरसाइकिल है, कई मंजिल का मकान है, रुपए पैसे है, नौकर है, लेकिन इनका बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, स्कूल नहीं जा रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है। लेकिन आप ही के मोहल्ले में कोई दूसरे लोग भी हैं जो गैर मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखते हैं, पैसा नहीं, अच्छा मकान नहीं, कार नहीं, कारोबार नहीं, रिक्शा चलाता है, लेकिन जब सुबह रिक्शा लेके निकलता है अपने बच्चे को वो स्कूल छोड़ के जाता है। इसका नतीजा क्या हुआ? कल तक जो लोग आपके यहाँ मजदूरी कर रहे थे, आज वो लोग या तो डीएम के बाप बन चुके हैं, कोई थानेदार का बाप बन चुका है, कोई तहसीलदार का बाप बन चुका है, कोई प्रोफेसर का बाप बन चुका है। और जो लोग जिनके यहाँ मजदूरी कर रहे थे, आज वो लोग मजदूरी करने पे मजबूर हैं। बेशक, बेशक। लेकिन दोस्तों, गौस आज़म के नाम से आप ये महफिल सजाए हैं, तो गौस आज़म फरमाते मैं इल्म हासिल करता रहा, इल्म हासिल करते करते अल्लाह ने मुझे कुतबियत के मकाम बेशक अपनी औलाद को पढ़ाएंगे। तालीम बहुत बड़ा हथियार है, अपनी औलाद को पढ़ाइए। आज आप कहते हैं कि हमारे इस्लाम पर उंगलियां उठाई जा रही है, उंगलियां उठाई नहीं जा रही है, आप उंगलियां उठवा रहे हो। इसलिए कि अगर आज हम नबी की शरीयत पर अमल किए होते, नबी की शरीयत को जानते, हदीस मुस्तफा का मुताला करते, तो आज हमारे घरों में तलाक की नौबत नहीं आती, हमारा घर तलाक से दूर होता। जब तलाक घर में वाक़ नहीं होगी तो दूसरा कैसे उंगली उठाएगा? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको कहना चाहता हूँ, इसके जिम्मेदार सिर्फ मर्द हज़रात नहीं है, हमारी माए और बहनें भी है। सुबह हुई मर्द कारोबार के लिए चला जाता है, लेकिन औरत घर में होती है। औरत की जिम्मेदारी है कि बच्चों को कैसे तालीम देना है, किस अंदाज में उनको ढालना है। क्या आपको मालूम नहीं गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चंद साल हुए थे कि आपके वालिद का इंतकाल हो गया, लेकिन आपको तालीम दिलाने वाली कोई मुज़क्कर ज़ात नहीं बल्कि वो आपकी वालिदा थी। आज ये है इतनी उन्होंने तालीम अपने बच्चे को दिलाई कि बच्चा तालीम हासिल करते करते कुतुब के मकाम तक पहुंच गया और यहीं तक महदूद नहीं। दोस्तों, हमारी तारीख बताती है, एक मुहद्दिस गुजरे हैं दुनिया जिनको रबियतुल राय कहते हैं। बेशक, बेशक। क्या नाम है? रबियतुल राय। उनके वालिद का रिश्ता हुआ। ये मुहद्दिस रबियतुल राय अपनी वालिदा के पेट में थे। उनके वालिद फोर्स में थे, गए मैदान जंग में, ट्रांसफर होते होते कभी यहाँ कभी वहां, कभी यहाँ कभी वहां, इस तरह से 15 से लेकर 30 साल का दरमियान अरसा गुजर गया, घर आने का मौका नहीं मिला। तो आप जानते हैं कि 15 साल में आदमी की हालत कैसी हो जाती है कि नहीं? मालूम है। चले गए, जब काफी दिनों के बाद लौटे तो सामने मस्जिद नबवी या कोई मस्जिद थी, वहां क्या देख रहे हैं कि मैं तो सरहद की हिफाजत कर रहा था, अपने मुल्क की सरहद की हिफाजत कर रहा था, और अगर मेरा कोई लड़का
نبی کی حدیث کا درس دیتا بہت اچھا ہوتا۔ ایک عالم کو دیکھتے ہیں کہ لوگ چاروں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نبی کی حدیث کا درس دے رہے ہیں، یہ خیال آیا اور لوٹے اپنے گھر کی طرف۔ جب لوٹے تو معلوم ہے ابھی بیوی سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، دروازہ کھول کے اندر آئے، ادھر سے پروگرام ختم کر کے محدث ربیعۃ الرائے آ گئے۔ جب آئے تو باپ کی نظر میں بیٹا جو ہے اجنبی ہے اور بیٹے کی نظر میں باپ اجنبی ہے۔ باپ کہتا ہے اے انسان میرے یہاں کیسے، یہ تو میرا گھر ہے۔ بیٹا کہتا ہے اے انسان ہمارے یہاں کیسے، یہ تو ہمارا گھر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو نہیں پہچان رہے اور بیٹا باپ کو نہیں پہچان رہا۔ تو میں ہو رہی ہے، بات بڑھ رہی ہے، بات آگے بڑھی، عورت اور کیا آئی، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، شاعر اسلام غلام مرتضیٰ صاحب اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اپنے گھر میں باپ کی نظر میں بیٹا اجنبی ہے اور بیٹے کی نظر میں باپ اجنبی ہے۔ باپ کہتا ہے کہ آپ ہمارے ہاں کیسے، یہ میرا گھر ہے۔ بیٹا کہتا آپ ہمارے ہاں کیسے، یہ ہمارا گھر ہے۔ اللہ اکبر، بات بڑھ رہی تھی، بات آگے بڑھی۔ ویسے ہی محدث ربیعۃ الرائے کی والدہ آگے بڑھ کے کہتی ہے میرے سرتاج، آپ جو مجھے ہزاروں درہم دے کے گئے تھے میرے شوہر، میں نے ان درہم کو اپنے میک اپ یا اپنے لباس یا کسی چیز میں خرچ نہیں کیا، یہ آپ کا لڑکا ہے، وہ درہم میں نے آپ کے بچے کی تعلیم میں خرچ کیا ہے۔ اے محدث صاحب، اے انسان سنو، یہ کوئی اور نہیں، یہ تمہارا شہزادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ویسے ہی شہزادہ سرخ میں گر جاتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پروردگار عالم، نبی کا غلام بن کر میں اپنے ملک کی سرحد کی حفاظت کرتا رہا اور میرا لڑکا مسجد میں تیرے نبی کی حدیث کا درس۔ بے شک سبحان اللہ۔ وہ کیا رہا ہے؟ ہم لوگ بچوں کو نہیں پڑھاتے، کوئی ماحول نہیں ہمارے یہاں، اور سوچتے ہیں کہ ہمارے گھر میں امن آ جائے، شانتی آ جائے، قرار آ جائے، چین آ جائے۔ جہاں تعلیم نہیں ہوگی وہاں افراتفری مچا رہے گا، جہاں تعلیم نہیں ہوگی وہاں فتنہ پھیلتے رہے گا۔ تو چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھ جائیں، ہمارے گھر میں سکون کا ماحول بن جائے، تو ہمیں غوث اعظم کی سیرت پر عمل کرنا پڑے گا۔ کیا آپ کو معلوم نہیں غوث اعظم کا خاندان کیسا تھا؟ آپ کے نانا حضرت عبداللہ سمعی بہت بڑے پائے کے بزرگ تھے، آپ کے والد گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست بہت بڑے پائے کے ولی تھے، اور آپ کی والدہ بہت عبادت گزار تھی۔ حال تو یہ ہے دوستو، اتنی عبادت گزار میرے غوث پاک جب مدرسہ پہلے دن پہنچے اور پہنچنے کے بعد استاد نے پڑھایا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو غوث اعظم بسم اللہ کی بات سے لے کر 18 پارہ پورا قرآن۔ کیا کھندولی میں ایسا ہوا ہے؟ بھائی بولو نا سبحان اللہ، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ ہے، نہیں ہوا نا کھندولی میں؟ ایک پارہ بھی نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بچہ پیدا ایسے میں نہیں کر لیا، نہیں ہوا ہے۔ یہ تو غوث اعظم کی شان ہے، سبحان اللہ۔ استاد فرماتے بیٹا پڑھنے آئے ہو کہ پڑھانے آئے ہو؟ بولے نہیں حضور پڑھنے آیا ہوں۔ تو بیٹا شرح بغداد میں اس کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو پڑھنے آتا ہے بسم اللہ پڑھتا، اس کے بعد استاد پڑھاتا تب وہ پڑھتا ہے۔ لیکن بیٹا تم نے بسم اللہ کی بات سے لے کر 18 پارے سنا دیے، تو ایسا تو لگتا ہے کہ تم